Now let's know more about Babar Ali. Babar Ali is an average boy. He lives in such a remote village where there is no school, not even in a nearby place. When he was a boy, he had to take rickshaw first and then walk about 5 kilometers to reach his school, Qasim Bazar Raj Govinda Sundari Vidyapit, where he was studying in high school. His village is full of illiterate people. He was the first person in his family to get a formal education. Education is the true religion according to Babar's father Nasiruddin Sheikh. What makes Babar Ali different from others is that after the school hours, normally the other children go for playing or at least gossiping. But this boy was not like that. When he was 6 or 7 years old, when he started going to school, while he was playing with his friends in that village, they made a game, that is school, wherein he acted as a teacher and other children acted as students for him. So it was an open school. They sat in the backyard of his house and he started teaching them. And the teaching was so very inspiring and so very joyful that these children started learning better. Babar himself says that his sister was his first pupil. And afterwards the number grew a lot, and then now it is an established school with 800 students on the roll. His father had been so supportive that when it was necessary that the children had to be given some midday meals to retain them, his father provided rice for his midday meal scheme. He is really a great man. They are not from well-to-do family. Babar Ali's father is just a jute seller with a very low income. And Babar has 3 siblings. They live in a thatched house. They have a small land holdings, but still he spared some rice for those poor children for their midday meals. So in our society, when someone takes an initiative of doing a noble thing, for that noble cause, good people come and help. Like that, many people came to his help. They supported Babar a lot. The people, those who are learned, educated, if they come forward to help for the cause of education, then it's no wonder. But an illiterate fishmonger, Tulu Rani Hazra, came to Baba's help. When she went on a fishmongering rounds, she went and confronted the parents. She used to ask them why they have stopped sending the children. Like that, she used to force the parents to send the children to the school. They are very small people, but with a great idea and a great will to do something good for the society. And Baba's own friends, those who came forward to teach as teachers in the afternoon, completely on voluntary basis. No payment has been paid to them. And they are all college students. So Babar says sometimes it is very difficult to control the children because they don't fear these high school students. But at the same time, he says that the narrow age gap between the children and the teachers here, that is student teachers you can call them as, this narrow gap has been advantageous for them. Some officers came forward to help him and they got rice from the government stock for midday meals. Now it is a well recognized school with all facilities. The children in this school get an education of a very high standard for free. Babar Ali named his school as Anand Shiksha Niketan. That means a home of joyful learning. Really, the children enjoy learning the things here in this school. आज हम बाबर अली के बारे में जानेंगे
बाबरअली वेस्ट बंगाल का मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट में गंगापुर नाम का एक गांव है, वहाँ ये जन्म लेते हैं 1993 में। बाबरअली खास क्यों है? वो भी हमारे जैसे ही है, ऑर्डिनरी एक गरीब घर में जन्मा हुआ, एक गांव में जन्मा हुआ। फिर भी बाबरअली कौन है, इंग्लैंड की रानी भी जानती है। तो ऐसा क्या खास है इस व्यक्ति में? बाबरअली के गांव में पढ़ाई लिखाई का कोई वातावरण नहीं है, क्योंकि वहाँ इलिटरेट्स ज़्यादा हैं। वहाँ कोई पाठशाला नहीं था, कोई प्राइवेट स्कूल भी नहीं था। तो बाबरअली को बहुत दूर जाना पड़ता था। वो कहता है कि रिक्शा में पहले जाना पड़ता था 5 किलोमीटर, फिर पैदल जाना पड़ता था। फिर भी इतना कठिनाइयों में भी उसने अपना विद्याभ्यास पूरा किया। प्राइमरी स्कूल में जब ये पढ़ रहा था, उस समय उसका गांव में देखता था कि बहुत सारे बच्चे ऐसे कुछ काम करते हैं या ऐसे टाइम पास करते हैं, वो स्कूल नहीं जा पाते, क्योंकि इतना दूर भेजना भी पेरेंट्स के लिए, वो भी बहुत गरीब पेरेंट्स के लिए बहुत मुश्किल का काम था। इसलिए वो ऐसे ही इधर उधर घूमते थे बच्चे। और जब ये दोपहर में गांव वापस आता था स्कूल से, तो ऐसे उनके साथ में जब खेलता था, तो इसने एक खास खेल बनाया, स्कूल स्कूल। तो इसमें क्या है, वो खुद टीचर बन जाता और बाकी बच्चों को बोलता आप लोग सब मेरे स्टूडेंट्स हैं। तो उनको सबको उधर बिठा करके जैसा वो सीखता था वो आकर के यहाँ सिखाता था बच्चों को। जब पढ़ाई लिखाई एक बोझ नहीं बनता, एक प्ले मतलब गेम जब ये बन जाता, खेल हमेशा खुशी देता है। हम खेल रहे होते हैं उस समय आमतौर पर हम खुश रहते हैं। तो ऐसे ही हुआ, जो ये सीख रहे थे उससे बच्चे बड़े प्रसन्न होते थे। तो इससे इसका हौसला बढ़ता और ये खेल अच्छी तरह से ऐसे चलने लगा। और 1 से 2, 2 से 3 ऐसे बढ़ता गया, संख्या बढ़ता गया। पीछे का जो आंगन था वहाँ ये बिठा करके ये बच्चों को ओपन स्काई में उनको पढ़ाता था दोपहर के बाद। तो जैसे ऐसा संख्या बढ़ता गया, बाबर उसका जो फ्रेंड्स थे उनसे रिक्वेस्ट किया कि वो भी आकर के थोड़ी देर इन बच्चों को पढ़ाए। एक एक करके एक एक ग्रुप को संभालते थे। ये 9 साल का था जब ये खेल सब शुरू हुआ था। फिर ये 16 ईयर्स होते होते ये एक पूरा पाठशाला ही बन गया। जब कोई एक नेक काम करता है, कोई ना कोई होता है ऐसे सपोर्ट करने वाला, तो वहाँ का बहुत सारे लोग पढ़ाए लिखे लोग जो थे, ऑफिसर्स थे, वहाँ के पुलिसमैन थे, वो रामकृष्ण आश्रम है वहाँ, सो वहाँ का जो मंक्स है वो सभी सपोर्ट करने लगे। बाद में ये पहली कक्षा से लेकर के 8वीं कक्षा तक बन गया। तो टीचर्स कौन है? वॉलंटियर्स, बाबरअली का दोस्त लोग जो खुद 11वीं में 12वीं में या BA BSc में फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे, वो लोग आकर के यहाँ पढ़ा रहे हैं। तो अद्भुत है ये। बाबरअली का पिता जो एक जूट सेलर है, प्राइमरी स्कूल में ही उसने छोड़ दिया था, मगर वो कहते हैं कि उनका धर्म कोई हिंदू मुस्लिम या दूसरा कुछ नाम नहीं लेते। वो कहते हैं कि मेरा धर्म है एजुकेशन। इसका मतलब वो जानते हैं एजुकेशन का महत्व क्या है, इसलिए वो पूरा सपोर्ट करते हैं इस लड़के को। तो एक बार ऐसा भी हुआ कि बच्चे जो आते थे वो ज़्यादा देर तक वहाँ बैठते नहीं थे। इन्होंने अपने घर से ही उनको खाना देने लगे एक वक्त का। तो उसके लिए राइस सप्लाई किया नासिरुद्दीन शेख। तो कितना दरिया दिल है, वो खुद ही एक थैच्ड हट, मतलब ऐसे कच्चा घर में रहते हैं,
फिर भी वो मन देखिए कितना विशाल है इनका। तो ही स्पेंड मनी ऑन दैट, ही गेव राइस। तो ऐसे ही सिलसिला जारी रहा, सपोर्ट आने लगा। यहाँ तक कि एक विधवा है नाम तुलू रानी हजरा, तो सुबह के टाइम में मछली बेचने जाती है, फिश मॉन्गर। तो उस समय वो जहाँ जहाँ जाती हैं, अगर इन बिटवीन कोई तो वो पकड़ लेती है, डांटती है, क्यों नहीं भेज रहे हैं आप लोग। पूरा पियोन का काम करती है, मगर एकदम मन लगा करके। कोई पैसा वैसा का बात ही नहीं है यहाँ, कोई तनख्वाह नहीं, कुछ नहीं, सब वॉलंटरी बेसिस। तो इसलिए छोटे लोगों का दिल बहुत बड़ा होता है, इससे जाहिर होता है ये, है ना। तो जब ये बड़ा बना, स्कूल एक एस्टाब्लिश्ड हो गया, मगर बिल्डिंग कुछ नहीं था फिर भी। तो लोगों ने सोचा कि क्यों ना इसको अधिकृत बनाया जाए। तो गवर्नमेंट को अप्लाई की इन्होंने, और गवर्नमेंट इतना सपोर्टिव था, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट, तो उन्होंने इसको रिकग्निशन दे दिया। तो नाउ बाबर अली स्कूल, गवर्नमेंट रिकग्नाइजेज स्कूल, एंड ही इज द हेडमास्टर एट द एज ऑफ 16 साल में इसने वहाँ का हेडमास्टर बन गया। तो ये एक रिकॉर्ड है। बाबर अली अपना ये स्कूल का नाम आनंद शिक्षा निकेतन रखा है। इसका मतलब जॉयफुल लर्निंग, सीखते वक्त वहाँ कोई टेंशन नहीं रहता। बाकी स्कूल्स में जैसा रहता है ऐसा यहाँ टेंशन नहीं रहता, क्योंकि यहाँ का टीचर स्ट्रिक्ट नहीं है, क्योंकि वो भी बच्चे ही तो हैं। तो इसलिए बाबर कहता है कि जो एज गैप जो नैरो है, मतलब दोनों का, वो भी बच्चे ही हैं और ये भी बच्चे ही हैं। तो इसलिए वो कहता है कि जो पढ़ाना कुछ हद तक आसान है, मगर कंट्रोल करना मुश्किल होता है, कि क्योंकि कोई डर नहीं है। टीचर्स का एक डर रहता है बच्चों में, वो यहाँ नहीं है। ये एडवांटेज भी है और थोड़ा डिसएडवांटेज भी है। अभी थोड़ी देर में आप सुनेंगे बाबर अली को खुद आप बात करते हुए आप सुनेंगे, और इनको बहुत अवार्ड्स भी मिला हुआ है, और जो काम कर रहा है वो तो बेमिसाल है। तो इससे हम कुछ ना कुछ हम सीखें। इसका जीवन ही एक प्रेरणादायक है, और वही खास है। आजकल ऐसे लोग इंडिया के लिए चाहिए। सच मानो तो ऐसे लोग ही देशभक्त होते हैं। जैसे झंडा लेकर के क्रिकेट के मैदान में वो नहीं होता, वो देशभक्ति नहीं है। कुछ बच्चों को अगर आपने अच्छा पढ़ाई लिखाई सिखाया और वो आगे चल कर के कुछ बन गए, तो देखिए आपका क्या योगदान रहेगा। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि यही रियल देशभक्ति है, और उम्मीद करता हूँ मैं कि हम कुछ न कुछ इस लड़के से सीख लें। कुछ लोगों को हम भी ऐसे पढ़ाएं, ये हो सकता है। विल पावर होना चाहिए, जो बाबर अली में हम देखते हैं। बाबर अली स्टैंड्स फॉर विल पावर, बाबर अली स्टैंड्स फॉर डिटर्मिनेशन, बाबर अली स्टैंड्स फॉर परसेवरेंस, बाबर अली स्टैंड्स फॉर देशभक्ति, पैट्रियटिज्म। I am coming from Murshidabad in the state of West Bengal. Murshidabad, one is the poorest district across the country. The village where I still live is a remote one, far from the modernization. When I was a student of class 5 only and a boy of 9 years old, I myself used to visit 10 kilometers far away school. 8 kilometers by bus and 2 kilometers by walk. And after returning from my school, in the afternoon, I saw some children, they are working in the fields, they are grazing the cattle. And I collected these children and started a school in my family backyard with 8 children. And my sister was my first student. Though at first I took it as my game,
Gradually, it became my passion, my nice dream, my heart and life. Number of students started increased and my school became a dreamland for the helpless children. It was named Anando Shiksha Niketan, the home of joyful learning.